First, we will that you have to be recognize this map. This is the map of India. As you know, we people are living in India. India is our country, and India is divided into the 29 states and 7 union territories. So it is a vast country. So in this area, it is a very large area. So due to that, the population is also be a large, and moreover to live, to survive, a people is doing the work to earn money. So in India, the people are doing the different types of the occupation to earn the money. As we have learned in the previous chapter that those are living in the coastal area, they are doing the fishermen, means people are doing the fishing work. And in the mountain areas, and they people are doing the rearing animals. So today's जो है बेटा हमारा जो topic है, that is on the agriculture, because the most of the work, most of the peoples in our country, they are doing the agriculture work. So today's our topic. Up now is that topic means agriculture work. Why the Indian people, why in India the agriculture work is main? Why the agriculture occupation is mainly done by the Indian people? Here beta, because India has a different type of the physical features, and that physical feature that in this area that India's जो soil है, that is very fertile soil, and that is for the suitable for the agriculture. Second बेटा आ जाता है climate. जो climate है, क्योंकि जो climate है बेटा, climate जो temperature है, that जो plantation है, that is grown according to the climate. So जो हमारा इंडिया का temperature है, climate है, that is also suitable for the agriculture work. Next बच्चे आ जाता है that water, because the main to growing of the crops or plantation, that we need the water. So many rivers are flowing in this area, that is why that main water is for the agriculture we need. That is why agriculture work is the main in our country. So that is why जो हमारा agriculture जो occupation है, that is the main in our country. So here we will talk about the types of the crops. कि जो इस crops जो हमारी country में जो grow करती हैं, that is divided into the two parts. Mainly one is the food crop, cash crop. So first we will discuss about the food crop. See that the crops जो है that is into the two parts, two kinds of the crops, food crop and cash crop. So here we will discuss that is the food crop. What are the food crops? Food crops are that to be grown to feed the people, means which crops we use ourselves, that is known as the food crops. And moreover, in which area that crop is grown, in that is their staple food. उस एरिया का वो staple food हो जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पंजाब, तो हमारे पंजाब में ज़्यादा राइस और व्हीट है, तो व्हीट that is our staple food. So here we will discuss ki which crops are being known as the food crops. First is the rice. Rice जो that is grown in the now it is it's a time June July से starting is growing time होता है इसका, and इसके लिए climate कौन सा चाहिए बेटा, that is hot and humid with the plenty of water, means that rainfall. इस सीजन में अब जून जुलाई में मानसून सीजन शुरू हो जाएगा, और जो climate है that is very hot, temperature is very high and with the rainfall. So इस जो राइस की क्रॉप जो ग्रोथ होती है इसकी इस टाइम पीरियड में होती है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा गर्म होता है और साथ में बारिश भी होती है. एंड इन विच स्टेट्स इट ग्रोन, दैट इज वेस्ट बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब एंड केरला. दीज आर द मेन स्टेट्स जहाँ पर राइस की पैदावार होती है. सेकेंड में आया था मेन, जो हमारा मेन जहाँ जो पंजाब की मेन क्रॉप है, दैट इज व्हीट. व्हीट
जिसको कनक बोलते हैं, गेहूं। एंड इट्स जो टेम्परेचर है बेटा, इसके लिए चाहिए हमें कूल एंड वेट क्लाइमेट, ठंडा, क्योंकि इसको हम कहाँ कब ग्रो करते हैं, इसकी उगाते हैं सर्दी, विंटर सीजन में। एंड इसका जो हार्वेस्ट टाइम है दैट इज इन द अप्रैल, जब स्टार्ट हो जाती है अपनी समर सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए कौन सा टेम्परेचर चाहिए, कूल एंड वेट क्लाइमेट। अब वीट कौन कौन सी स्टेट्स में होती है, दैट इज द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ इंडिया मीन्स हमारा जो पंजाब हरियाणा, दैट इज द नॉर्दर्न प्लेन एरिया। एंड यूपी उत्तर प्रदेश, एमपी मीन्स मध्य प्रदेश, गुजरात। दीज आर द मेन स्टेट्स जहां पर वीट की पैदावार होती है। नेक्स्ट इज बेटा पल्सेस। पल्सेस कौन सी होती है, जिसको दालें बोलते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो पल्सेस आपके मम्मा भी बनाते ही है ना, घर पे आप खाते हो, अच्छा लगता है आपको, तो दैट इज उसको बोलते हैं पल्सेस। एंड इसके लिए टेम्परेचर बेटा मॉडरेट टू हाई टेम्परेचर मीन्स जहां पर कूल जो कोल्ड टेम्परेचर नहीं होता इनके लिए, वैसे जो सीधा जहां पर या तो टेम्परेचर ना ही गर्म ना ही ठंडा, और या फिर जहां पर हाई टेम्परेचर चाहिए इस पल्सेस को उगाने के लिए। सो उसके लिए कौन सी जो हमारी इस टाइप का टेम्परेचर कौन सी स्टेट में है, दैट इज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड कर्नाटक। क्योंकि जो राजस्थान है, मेनली हम राजस्थान में देखते हैं, राजस्थान का जो टेम्परेचर होता है बेटा वहां पर ज्यादा मीन्स बारिश वहां पर कम होती है और उसका टेम्परेचर हाई रहता है डे के टाइम। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं बेटा मिलेट्स। मिलेट्स कौन से होते हैं, जिसमें ज्वार, बाजरा, जो चीजें हम ज्यादा विंटर सीजन में यूज करते हैं। तो इसके लिए टेम्परेचर क्या है, लो रेनफॉल, बारिश नहीं, पानी कम चाहिए इनको, कम पानी में ही इसकी ग्रोथ होती है, अलॉन्ग विथ मॉडरेट टू हाई टेम्परेचर, सेम जो कि पल्सेस के लिए चाहिए। एंड इसके लिए स्टेट्स कौन सी बेटा, दैट इज द गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। दीज आर द मेनली टॉपिक दैट कि फूड क्रॉप क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द फूड क्रॉप, एंड उस कौन सी नेम ऑफ द फूड क्रॉप्स, and which climate is suitable for that crops, and in which states these crops are being grown. So, next topic is in this chapter, that is the cash crops. As we have learned that the food crops कौन से होते हैं, that will be that people is used for their eat. And second जो है बेटा cash crop का meaning क्या था, what do you mean by the cash crop? That crop which is used to sell, जिसको मार्केट में सेल करने के लिए ग्रो किया जाता है. These also we use, but we will use to be when it will be sale in the market and we will get from the market, that is required as per our required. So here we will discuss ki which crops are being known as a cash crop and which climate is temperature is to be suitable for that crop and which स्टेट्स आर देयर जहां पर उसकी ग्रोथ होती है क्रॉप्स की. फर्स्ट बेटा दैट इज द नेम इज द शुगर केन. शुगर केन, यू ऑल ऑफ यू लाइक टू शुगर केन. शुगर मीन्स गन्ना एंड इट इज यूज्ड फॉर टू मेकिंग द शुगर एज वेल एज द जगरी, जिसको हम चीनी और गुड़ बनाने के लिए यूज करते हैं और जो भी हमारी स्वीट डिश होती है उसमें हम उसको यूज करते हैं. एंड नाउ इन दीज डेज गन्ने का जूस बहुत चल रहा है कि आजकल गर्मियों का दिन है तो हम लोग गन्ने का जूस भी पीते हैं, इसका जूस भी निकाला जाता है शुगर केन का. सो शुगर केन के लिए बेटा क्लाइमेट कौन सा चाहिए, दैट इज द हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट. मॉइस्चर मीन्स जहां पर ह्यूमिडिटी होती है, गर्मी एज वेल एज द मॉइस्चर इज देयर इन द क्लाइमेट दैट इज सुटेबल फॉर शुगर केन. एंड विच क्रॉप्स आर विच स्टेट्स आर भी देयर जहां पर इसकी ग्रोथ होती है, दैट इज द यूपी, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. दीज आर द स्टेट्स जहां पर शुगर केन की ग्रोथ होती है, जहां पर उगाया जाता है. सेकेंड बेटे आ जाता है जूट. अब जूट किसके लिए यूज, जूट क्या होता है, रेशे जिसको बोलते हैं, इसको हम यूज करते हैं, उसके मैट वगैरह बनते हैं, आपके बैग है, जूट के बैग भी बनते हैं. सो मेनी थिंग्स आर बी making with the jute that is usable for us.
एंड इसके लिए बेटे क्लाइमेट कौन सा आता है, दैट इज द हाई टेम्परेचर एज वेल एज द प्लेंटी ऑफ वाटर, मींस पानी ज्यादा हो, टेम्परेचर की क्या है हाई, बल्कि उसका हॉट टेम्परेचर हो। तो यहाँ ये मेनली कहाँ पर होता है, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम, उड़ीसा। वेस्ट बंगाल, बिहार, जो वहाँ पर जो गंगा रिवर है, कि रिवर का जो डेल्टा है, मेनली इन दैट एरिया इट शुड बी ग्रोन। So third is the mainly most important, that is the cotton. कॉटन आजकल हम इस समर सीजन में हम कॉटन क्लॉथ्स ही पहनते हैं। दैट इज द वेरी कूल एंड कीप द जो स्वेट को मींस ऑब्जर्व कर लेते हैं, दैट इज द वेरी बेस्ट फॉर द समर सीजन। तो कॉटन इज यूज्ड फॉर द मेकिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स एंड इट इज इन विच एरिया एंड it is grown in that temperature, which temperature is required this, that is a warm sunny weather, dry area with the black soil. तो black soil कहाँ पर पाई जाती है, that is हमने पहले भी इसको that we have learned in the plateau region, जो center part आता है हमारा इंडिया का, that is the उस एरिया की जो soil है, that is the black soil और warm sunny weather to suitable for the cotton growth. and इसके लिए जो स्टेट्स हैं, अब ये कौन सी स्टेट्स में ज्यादा होती है, दैट इज गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट आ जाता है टी। नेक्स्ट इज टी। टी मीन्स चाय। सभी आपके घर में भी आपके मम्मी पापा चाय पीते हैं ना, दैट इज ऑल विल लाइक इन द विंटर सीजन में, सर्दियों में ज्यादा लोग यूज करते हैं टी को। एंड अब टी जो है इसके लिए कौन सा क्लाइमेट चाहिए, दैट इज अ वार्म एंड वेट क्लाइमेट, वार्म एंड वेट क्लाइमेट। एंड इसके लिए बेटा स्टेट्स कौन सी है, दैट इज असम, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। दीज आर द मेन स्टेट्स जहां पर चाय की पैदावार की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे कॉफी। कॉफी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द टी, इट इज वी लाइक टी, इसको भी हम एज अ पीने के लिए यूज करते हैं। तो इसका जो टेम्परेचर है दैट इज कूल वेदर एंड हैवी रेनफॉल। इसके लिए बारिश ज्यादा चाहिए और वेदर जो है वो कूल चाहिए, ठंडा चाहिए। ज्यादा गर्मियों में इसकी जो जो हॉट एरिया है वहां पर इसकी पैदावार नहीं होती, वहां पर इसकी ग्रोथ नहीं होती है। एंड इसके लिए जो टेम्परेचर है दैट इज केरला स्टेट्स जो है, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। दीज स्टेट्स आर मेन जहां पर जो है कॉफी की ग्रोथ की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा ऑयल सीड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑयल सीड वी यूज इन योर किचन। आपके मम्मा भी यूज करते हैं जो वेजिटेबल बनाने के लिए, और कोई भी चीज जो कुकिंग करनी है उसको ऑयल में पकाया जाता है और फ्राई किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप वेजिटेबल्स बनाते हैं या फिर आप पूरी वगैरह बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, दैट उसके लिए क्या यूज होता है बेटा, ऑयल। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ऑयल सीड्स आर बी ग्रोन इन आवर एरिया, दैट इज लाइक मस्टर्ड, तिलों का भी होता है, सनफ्लावर ऑयल इज देयर। दीज आर द काइंड ऑफ ऑयल सीड्स। एंड उसके लिए क्लाइमेट है बच्चे वार्म क्लाइमेट एंड हैवी रेनफॉल, दैट इज सेम जो हमने कॉफी के लिए कूल था, कूल वेदर था, बट यहाँ पर वार्म क्लाइमेट है, बट बारिश इसके लिए ज्यादा चाहिए जहां पर ये ऑयल सीड्स ग्रो किए जाते हैं। एंड स्टेट्स आर दिस उड़ीसा, केरला, राजस्थान, बिहार, हरियाणा एंड पंजाब। दीज आर द मेन स्टेट्स जहां पर ऑयल सीड ग्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट स्पेशल जिसके बिना खाना बनाना ही कुछ, जिसमें कोई टेस्टी नहीं, दैट इज द स्पाइसेस। अब स्पाइसेस जो है वो क्या, किस चीज के लिए, कौन से स्पाइसेस, फॉर एग्जांपल आपके मम्मा क्या क्या यूज करते हैं, चिली यूज करते हैं, पेपर्स यूज करते हैं, कार्डमम्स यूज करते हैं, क्लोव्स यूज करते हैं ना, जैसे लौंग, इलायची और जीरा। सो दीज आर द नेम ऑफ द स्पाइसेस। अब हम स्पाइसेस को यूज कैसे करें, व्हाई वी यूज दीज स्पाइसेस टू मेक आवर फूड टेस्टी। अब जो भी हम खाना बनाते हैं, आपके मम्मा कुछ भी पकाते हैं, उसको उसका फ्लेवर, उसके टेस्ट को चेंज करने के, टेस्ट के बनाने के लिए वी यूज द स्पाइस। तो इसकी जो बेटा जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, वो कौन सा है, दैट इज अ कूल क्लाइमेट विद द हैवी रेनफॉल।
एंड मेनली ये हमारे पूरे होल और मीन्स ऑल ओवर द इंडिया कहाँ पर पाया जाता है? सम मेन टू स्टेट्स आर देयर, केरला एंड कर्नाटका इन द वेस्ट साइड, वेस्टर्न कोस्टल साइड. एंड ड्यू टू दीज स्पाइसेस, ओनली स्पाइसेस की वजह से ही हमारे कंट्री में दैट फ्रॉम द अर्लियर टाइम, ब्रिटिश टाइम के लिए टाइम पर जो हमारा इंडिया में ट्रेडिंग सिस्टम जो शुरू हुआ था, दैट इज फॉर द स्पाइसेस ओनली, बिकॉज जो हमारा इंडिया दैट इज द मेन पॉपुलर फॉर द स्पाइसेस. दीज आर तो हमारा हो गया बेटा फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप. और नाउ वी विल दैट डिस्कस अबाउट द सीजन्स, क्रॉप ग्रोइंग सीजन्स इन इंडिया, कि कौन सी मेनली जो हमारी क्रॉप्स है दैट इज डिवाइडेड इनटू द टू सीजन्स आर देयर, दैट आर रबी एंड खरीफ. वन इज रबी एंड खरीफ. और रबी कौन सी होती है बेटा? दैट इज द जो सोन जहां पर जब की फसल कहाँ कौन से टाइम पे उगाई जाती है. हार्वेस्ट मीन्स कब उसको कट किया जाता है, जब वो पक के तैयार हो जाती है फसल, उसको बोलते हैं हार्वेस्ट. तो सोन टाइम कौन सा? जो रबी फसल जो क्रॉप्स होती है दैट इज सोन इन द विंटर एंड हार्वेस्ट इन द समर. एंड ये कौन सी है? दैट इज द व्हीट. जो व्हीट है वो हमारी रबी क्रॉप है. और इसके ऑपोजिट अब आ जाते हैं खरीफ. खरीफ मीन्स दैट इज समर सीजन में. समर में इसकी बेटा सोन इसको उगाया जाता है. जैसे आजकल हम लोग क्या दैट उगा रहे हैं राइस, मेज एंड कॉटन. और विंटर में दैट इज अ हार्वेस्ट. विंटर जो सीजन है उस टाइम पे हार्वेस्ट मीन पक के तैयार हो जाती है, तो राइस मेज जो इसको कट किया जाता है. तो दीज आर द रबी एंड दीज आर द Kharif. So now topic of chapter is